Good morning, everyone. I am Santosh Karvi, and I welcome all of you in the in-house CBSE in-house training program. And my topic is Health Promoting School. About Health Promoting School, and in this short, it is known as HPS. Now, by the topic, you can see that Health Promoting School. That is, to run a school smoothly, the environment of the school should be healthy. And by the word healthy, it also means the health of the person, that means his mental health, physical and emotional health. Also the surroundings, the community from which the student comes to school. So today, I hope you will have a nice time with me discussing about the topic. I will ask some questions which is in my mind, and I hope some of you have got your answer also. And some questions are like that, it is to be forwarded to the CBSE also. So we will discuss all about it. First of all, I will brief about the HPS, Health Promoting School. HPS is a school that constantly strengthens its capacity as a healthy city for living, learning and working. That is, this type of schools, it includes all the three departments, that is living, learning and working. Learning for children, working for teachers and living for the school management. So here, the cooperation of all the three departments should be equal. Without the cooperation of the school management, the school cannot function properly. And without the help of the teacher, the student cannot learn. And if the students are unable to learn what they are getting knowledge in the school, then they will not success in life. So, all the three departments are equally important for the upliftment of the society, of the community, then state, then nation. Since 1950, the World Health Organization has initiated way to implement health on young people. The World Health Organization in 1950 have decided that we will implement in a school where the healthy environment is created in the school. And for this, they have organized two conferences. And the conference called the National Conference on Primary Health, and it was held in 1978 in Jakarta. And the first international conference on health promotion in the year 1986, and it was held in Canada. So by the two conferences, the World Health Organization took the initiative. First of all, it was the New Zealand where the first school was set up, the Health Promoting School. After that, many countries joined the conference, and at present, there are, by the year 1991, the European network HPS was established, and at present, there are near about 37 countries where the Health Promoting School is established, and India is also one of the country among the 37 countries. Now, we will talk about the Health Promoting School, that is the health department. Now by the health, it means that the health, the physical, the mental and emotional health of the students. Not only students, about the school management, about the teachers and the community from where the student comes. And for that, I will give some example which is very important. Why we have to promote the health promoting schools? Earlier days, you were aware that India was known for its knowledge, giving knowledge. In ancient time, people from the abroad, all over the world, used to visit India. Yes, बाकी सारे कंट्री से, वर्ल्ड से लोग इंडिया आते थे. क्यों आते थे? पहले एंशिएंट टाइम में इंडिया क्या था, वो यहाँ से हम लोग नॉलेज देते थे, फॉर एक्वायरिंग नॉलेज. एजुकेशन हाउ था एंशिएंट टाइम में, विदेश से लोग आते थे कि इंडिया में नॉलेज प्राप्त करने के लिए, जैसे चाइना से भी आए थे, बाकी कंट्री से भी, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग आते थे यहाँ से, नॉलेज लेके चले जाते थे.
But the present time, the things have changed. सारा सिस्टम चेंज हो गया. Now we are following their rules. हम लोग उनका जो रूल है वो फॉलो कर रहे हैं. हम लोग अभी जा रहे हैं. अभी जितने भी हम लोग के बच्चे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा एजुकेशन के लिए हम लोग ऑक्सफोर्ड चले गए, अमेरिका चले गए. We are lagging behind. मीन्स हम लोग पीछे रह गए. जिसने नॉलेज बांटा वो आज पीछे है, और जिसने हम लोग से नॉलेज लिया वो आज आगे है. ये कंडीशन आ गई है. दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडिया. Before ancient time, people used to visit us, but now we are visiting the other countries. That means we are lacking something in our education system. हम लोग के education system में वैसा कुछ कमी है जिसके वजह से आज हम लोग की ये स्थिति हो रही है. And the same topic was also discussed in World Health Organization in 1991. That means in India, a survey was done. एक survey किया हुआ था. In India, most, that means about 90% people only give examples. मतलब हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल देते हैं, but we are not implementing it. हम लोग दूसरों को एडवाइस दे सकते हैं, but हम लोग प्रैक्टिकली उसको फॉलो नहीं करते. It is the report of a survey. एक सर्वे का रिपोर्ट है. That means we are expert in giving advice. हम लोग एक्सपर्ट हैं एडवाइस देने के लिए, but जब हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना होता है, we are lagging behind. And for that reason, the people from the abroad, what they think, we are primitives. अभी वो लोग को ये लग रहा है कि हम लोग primitives हैं. They used to say कि primitives, that means you are the early stage of development. हम लोग early stage में हैं. We gave them knowledge. हम लोगों ने knowledge दी उनको, लेकिन उन लोगों को अभी ये लगता है कि हम लोग primitives हैं. That means हम लोग early stage में हैं. उन लोग से सीखना है. So we are lagging behind our education system. And I hope that by the coming year, the new education policy, some drastic changes may occur. I hope so. अगर वो होता है, then it will be good for our education system. But otherwise, we are day by day we are going backward. हम लोग आगे जाना चाहिए, लेकिन हम लोग day by day क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं. Something is wrong in our education system. The school management or the government or the boards, the CBSE board, the ICSE board, the members or the scholars, they should think about it. They should organize meetings, something. There are many scholars. Something we have to find out the way so that we can come forward. It is very important. So on this regard, in India, the Ministry of Youth Affairs 2001 has suggested an approach. What they have done, they had planned an action, a 5-year plan. They will visit the schools, they will see the environment about the school, how it is functioning, the mental health, the physical, emotional, and the community from where the students are coming. They will have a visit in that area and look the matter. By doing so, hope we will take out some positives and implement it in our new education policy. Now, aim of the health promoting school. What is the aim of the health promoting school? Health promoting schools are schools which display in everything they say and do support and commitment to enhance the emotional, social, physical, moral well-being of the school community. That means this type of school, it does not only help the children to learn something new, but they also encourage all the parents, active participation of the parents, and also the community from where the student comes. All of them are included. सारे को include किए हुए हैं. So that a healthy environment can be created for the betterment of the students, which is very much important. सबका cooperation चाहिए. So उसके लिए parents, community जहाँ से वो बच्चे आते हैं, उनको भी include करना. By doing so, the new ideas may arise. Every person in this world is unique. हम लोग को पता है कि हर person आदमी क्या है, वो unique है, अपने आप में unique है. That means they will have new ideas. अपने आप के पास वो new ideas होंगे. जो मेरे पास होगा
शायद आपके पास नहीं है, जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो आइडियाज आएंगे कैसे? जब हम लोग एक साथ कहीं बैठेंगे, कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, उससे न्यू आइडियाज ग्रोथ होंगे। और वो हम लोग क्या एज ए टीचर हम लोग क्या करेंगे? बच्चे का बेटरमेंट के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इफ वी आर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ, दैट मीन्स वी आर नॉट ओनली हेल्पिंग दिस स्टूडेंट्स, वी आर हेल्पिंग द कंट्री एज ए नेशन आल्सो। हम लोग एज ए नेशन को भी हेल्प करते हैं। बट व्हेन वी आर इंक्लूडिंग द कम्युनिटी, लेकिन जब हम लोग कम्युनिटी को इंक्लूड करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन कराते हैं स्कूल में, देन देयर आर सम रिस्क आल्सो, उसमें कुछ रिस्क भी होते हैं, बिकॉज पर्सन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज थिंक डिफरेंट, वो लोग अलग तरीके से सोचते हैं। सबका सोचने का तरीका अलग होगा कि आप कैसे हैं, वो कैसा है, हम लोग ओपिनियन बना लेते हैं। इन द स्टार्टिंग आई हैव टोल्ड यू, इंडियंस आर एक्सपर्ट इन गिविंग एडवाइस, बट व्हाइल इट कम्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन वी आर लैगिंग बिहाइंड। हम लोग सिर्फ एग्जांपल बेटर दे सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। I don't know, it is in gene or something like that, but the survey found that Indians are good in giving example but not in implementation. हम लोग सिर्फ एडवाइस देने में आगे हैं, लेकिन उसी को इंप्लीमेंट करने में हम लोग काफी पीछे हैं। That is also one of the reason why we are lagging behind in our education system. And the topic is also discussed in the new education policy. तो new education policy आएगी आगे, इसमें ये टॉपिक भी है। And about the health, उसको भी काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। Much importance is given about the health. So I was talking about the community, the members of the community, how they think. अगर आप लोग कम्युनिटी के जो आदमी हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी अगर हेल्थी एजुकेशन या हेल्थी एनवायरनमेंट बनाने के लिए अगर उनको स्कूल में, कैंपस में या मीटिंग में कभी बुलाते हैं, then there will be some good results भी मिलेगा उनको। But there is some risk also that the teacher can illuminate, जिसको हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स उसको हटा सकते हैं। I will give you a simple example. I will write some words in the board. You can just imagine it. I am writing A, capital A. I am leaving the place. I am writing C. What it will be? जो बीच में ब्लैंक छोड़ा है वो क्या होगा? B. B होगा। Then I am writing over B. This is the opinion. What I am saying, this is the opinion. अभी यहाँ पे जब मैंने A लिखा, यहाँ पे C लिखा, यहाँ पे R भी हो सकता था, A R C R. That means the teacher who teaches maths, he knows. मतलब R भी एक सेंटेंस होता है ना? ये कंपल्सरी था कि यहाँ पे B ही होना चाहिए। कंपल्सरी तो नहीं था। This is the opinion. That means the B is you. ये B हम लोग हैं, और जो A और जो C है वो लोग हैं। That means जो आप जो है ना, वो आप डिसाइड नहीं करते हैं कि आप कैसे हैं। आपके साथ जो लोग हैं उनको देख के हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप कैसे होने चाहिए। I think it totally depend upon situation of a person. Yes, but you can see the example. अभी मैंने क्या बोला यहाँ पे कि यहाँ पे R भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, लेकिन हम लोगों ने क्या बोला, डेफिनेटली डायरेक्ट B में चले गए। इसका मतलब ये जो B है ना वो आप है, और ये जो A और C है वो लोग हैं। लोग आपके बारे में कैसे ओपिनियन बनाएंगे कि आपके आस-पास कैसे लोग हैं, उसको सोच के आपका ओपिनियन बना देंगे। अच्छा वो कोई शराबी के साथ घूम रहा है तो हम लोग क्या सोचा, अच्छा इसके कुछ में भी कुछ है, मतलब उसका दोस्त को देख के हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। दिस इज द ओपिनियन, ये हम लोग ओपिनियन बना लेते हैं। इट शुड बी रिमूव, ये रिमूव करना चाहिए ताकि कुछ चेंजेस आए। हम लोग फटाक से मतलब लोगों को देख के हम लोग ओपिनियन बना देते हैं। दैट मींस वी डोंट हैव सेल्फ ओपिनियन, हम लोग अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, लोग डिसाइड करते हैं कि आप कैसे होने चाहिए। सराउंडिंग्स को देख के हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो कैसा होना चाहिए। अगर ऐसा ही होता देन द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द रिमोट एरिया, जो रिमोट एरिया से आते हैं, तो वो कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। ऐसा तो नहीं, जो रिमोट एरिया से आते हैं वो भी बड़े आदमी बनते हैं। लेकिन हम लोग क्या ओपिनियन बनाते हैं, अच्छा वो तो बहुत गांव एरिया से आते हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी है ना कुछ है,
तो हम लोग ये ओपिनियन बना लेते हैं कि वो मतलब बैकवर्ड ही रह जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। सो मेकिंग ओपिनियन इट शुड बी चेंज, ये कल्चर हम लोग को चेंज करना चाहिए एंड इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द स्कूल। और ये सारी चीज हम लोग स्कूल से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज स्कूल में क्या होते हैं, चिल्ड्रन ऑफ द एज फ्रॉम नियर अबाउट 3 to 4 years दे कम टू स्कूल। जिनका एज 3 years या 4 years होते हैं वो स्कूल आते हैं, और तब से लेके क्लास 10 to 12 वो हम लोग के पास रहते हैं, स्कूल में रहते हैं। दैट मींस दे आर गेटिंग एवरीथिंग द व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग देम। मैक्सिमम टाइम तो हम लोग के पास रहते हैं, उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं, घर में स्टडी करेगा, खाना पीना खाएगा, सो जाएगा, फिर कल सुबह स्कूल आ जाएगा। 6 to 7 hours वो हम लोग के पास रहता है। दैट मींस दे आर गेटिंग द नॉलेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग। हम लोग जैसा नॉलेज दे रहे हैं वो वैसे पाते हैं। So this was the aim. That means हम लोगों को चेंज लाना है। The first change was that raise awareness of the importance of promoting health of all। और health सबसे ज्यादा important है। अगर आप healthy हैं तो आप कुछ भी ड्रीम कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। If you are unhealthy, then nobody is there behind you. Not the Indian government, and in the private sector it is more harsh. They will not behind you. अगर आप अनहेल्दी हैं तो ना कोई स्कूल मैनेजमेंट ना कोई गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई हेल्प नहीं करने वाला। हेल्थ यू शुड गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस टू हेल्थ। हेल्थ को आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि आप हेल्दी हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। आप खुद ही अनहेल्दी है दैट मींस आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू एनीथिंग। सो यू शुड राइज द अवेयरनेस। हम लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना, जिसके लिए वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल। वी कैन ऑर्गेनाइज सम प्रोग्राम और फंक्शन इन द कम्युनिटी एरिया आल्सो। हम लोग कम्युनिटी एरिया में भी जा सकते हैं, वहां भी अवेयरनेस फैला सकते हैं। स्टिल इन इंडिया देयर आर सच प्लेसेस वेयर पीपल आर अनअवेयर अबाउट द हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यू के बारे में अभी तक उनको जानकारी नहीं है। They doesn't know about the hygiene, कैसे रहना चाहिए। Still there are most of the villages in India, they doesn't know about that. They doesn't know about the hygiene. So we can go over there and raise the awareness. Awareness को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें फैला सकते हैं। It should be the duty of the teacher. But in this case also there is some difficulties. Again, I will give one interesting fact of that. The teachers, हम लोग टीचर्स को क्या बोलते हैं इंडिया में? टीचर को काफी रेस्पेक्ट करते हैं। टीचर सबसे मतलब सबसे ऊंचे पद में है। वो बस हम लोग बोलते हैं, we are only saying it, but we are not implementing it. हम लोग उसको implement नहीं करते। Just I am giving a short example. हम लोग क्या करते हैं कि टीचर है, that means he should be fully devoted to school. वो स्कूल के लिए डिवोटेड होने चाहिए। And I also agree कि हम लोग को डिवोटेड होने चाहिए। But when the school this winter break, I am saying speaking about present day, the school is closed from 26 December to 2 January, and most of the school in this India they are closed now. In Delhi also it is closed. अभी उसमें क्या हुआ, स्कूल बंद हो गया है। We are calling the teachers to school. हम लोग टीचर्स को क्या करें, स्कूल मैनेजमेंट स्कूल में बुला रहे हैं। Here we are conducting in-house training. I accept it, मतलब वो in-house training होना चाहिए, वो betterment के लिए। But have you read the newspaper about Delhi? दिल्ली में आपने न्यूज़पेपर तो पढ़े होंगे। दिल्ली में क्या हो रहा है अभी का प्रेजेंट सिचुएशन में? The government teachers they are employed in the IGI airport. एयरपोर्ट में उनको ड्यूटी लगाया गया है कोरोना चेक करने के लिए। वो टीचर हैं लेकिन छुट्टी है, उनको एयरपोर्ट में ड्यूटी लगाते हैं कोरोना चेक करने के लिए। तो इस हिसाब से मतलब एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा। बोलते हैं हम लोग कि टीचर्स सबसे ऊंचे पद में, लेकिन हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करते। और उसी को अगर आप इन-हाउस ट्रेनिंग कराए या कुछ मीटिंग करा ले, कुछ भी स्कूल का रिलेटेड कुछ काम करते तो कुछ फायदा होगा ना। अभी वो कोरोना टेस्ट करके वहां पे टीचर्स से वो कोरोना टेस्ट करा के मतलब क्या दिखाना चाहते हैं?
हम ये बोल देंगे खाली नहीं देंगे, टीचर्स का कोई वैल्यू नहीं। दैट मींस टीचर डजंट हैव एनी वैल्यू नो। टीचर को क्या है, टीचर मतलब आप कुछ आगे नया कराने के लिए, कुछ बच्चे को नया सिखाने के लिए आपको कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। इन प्लेस ऑफ दैट यू आर इंप्लीमेंटिंग द ड्यूटी ऑन द आईजीआई एयरपोर्ट फॉर कोरोना टेस्टिंग। सब इसका एजुकेशन सिस्टम में नहीं, ये हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है। एंड दिस वाज द लैकिंग, द रीजन बिहाइंड व्हाई वी आर लैकिंग इन द एजुकेशन। एंड द सेम द हेल्थ प्रोमोटिंग स्कूल, one of the aim is also to implement the teachers in a right direction. हम लोग टीचर्स को टीचर्स के ड्यूटी में इंक्लूड करेंगे। The school which are run by health promoting school, इनकी इसके जो स्कूल हैं वो टीचर को सिर्फ स्कूल एक्टिविटीज में इंक्लूड कराते हैं। वो लोग छुट्टी भी है बुलाते हैं, लेकिन वो लोग इंप्लीमेंट ऐसे कराएंगे ताकि स्कूल का कुछ बेटरमेंट हो, चिल्ड्रन का बेटरमेंट हो, कम्युनिटी का बेटरमेंट हो। सो इट शुड बी फॉलोड इन ऑल द स्कूल। मुझे लगता है कि वो सारे स्कूल में फॉलो होने चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ प्रोमोटिंग स्कूल। मतलब क्या क्या बेनिफिट हो सकता है कि अगर हम लोग हेल्थ प्रोमोटिंग स्कूल स्टैब्लिश करते हैं कम्युनिटी में। empowers students to be more involved in school life and part of the positive changes. Empower students to be more involved in school life and part of positive changes. मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करा सकते हैं स्कूल में। स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कराना चाहिए। बट वी आर नॉट इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कराते हैं। हम लोग कराते क्या है, स्कूल आ गया, असेंबली हो गया, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, छुट्टी हो गया तक पढ़ाओ, फिर घर जाएगा पेरेंट बोलेगा पढ़ो, रात को पढ़ो, फिर सुबह आ जाओ फिर पढ़ो। दैट मींस वो लोग कुछ उनको हम लोग कुछ इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को सोचने का कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं। ओनली वी आर डूइंग स्टडी, खाली पढ़ो 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 ये कर रहे हैं। और ये सारे हम लोग जानते हैं, वी नो इट वेरी वेल। सारे जो टीचर्स हैं वो जानते हैं कि सिर्फ बच्चों को फोर्स किया जाए तो हम लोग को सक्सेस नहीं मिल सकता है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। वी नो एवरीथिंग, बट बाय द फाउंडेशन, हम लोग का भी कुछ फाउंडेशन, जैसे आप लोग को सिलेबस टाइम भी पूरा करना है। आपको अगर बच्चे को सिर्फ बाहर एक्टिविटीज कराएंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। दैट मींस वी आर हैविंग सम फाउंडेशन, हम लोग का कुछ फाउंडेशन है। एंड ऑल दिस फाउंडेशंस शुड बी रिमूव्ड बाय either CBSE और स्कूल मैनेजमेंट। दे शुड थिंक, मतलब वो लोग को सोचना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंप्रूव करने के लिए बच्चे को कैसे इन्वॉल्व कराना चाहिए। द स्कूल, द हेल्थ प्रोमोटिंग स्कूल, उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे को इन्वॉल्व कराया जाए कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। It should be followed in the other school also. This is one of the benefit of the health promoting school. Second benefit, improves student success and well-being. इससे क्या होगा कि बच्चों को सक्सेस जो रेशियो है वो इंक्रीज हो सकता है। उससे बच्चों का जो सक्सेस रेशियो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि वो लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे। दैट मींस वो लोग एक्टिव रहेंगे क्लास में, इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने में। देन डेफिनेटली द रिजल्ट विल बी नाइस। वन हु इज हेल्दी, जो हेल्दी है वो आगे कुछ कर सकता है। अगर वो हेल्दी है फिजिकली मेंटली तो वो कुछ कर सकता है। अबाउट द हेल्दीनेस I will tell you one thing about the retirement. About the retirement, गवर्नमेंट आपको रिटायरमेंट का कौन सा उम्र में दे देता है? 60 to 65। क्यों देता है? फिजिकली वी आर आउट ऑफ सर्विस। फिजिकली वी आर आउट ऑफ सर्विस, इसके बाद आप मतलब उनके लिए कोई काम लायक नहीं है, नहीं रह गए हैं, आपसे उनको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। फॉर दैट रीजन दे आर गिविंग द रिटायरमेंट, उसके लिए आपको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। Not for you have spent so many valuable time for the government, they are not thinking about it. You are not used at present, you are not in use for them. उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। आप फिजिकली मेंटली आप उनके मतलब जो उनके क्राइटेरिया काम कर रहे हैं उसमें फुलफिल नहीं हो पाते, इसलिए आपको रिटायरमेंट कर दिया गया। एंड द सिचुएशन इज मोर वर्स इन द प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। आई एम नॉट ओनली सेइंग अबाउट प्राइवेट स्कूल बट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन।
अब अगर अनहेल्दी है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा. So first preference should be given by the health, on the health. The health of the students, the teachers, parents, communities. Health is important. So health awareness के बारे में हम लोग बोल रहे हैं. Because if we are unhealthy, I've given the example of the retirement. Nobody is there to ask you something. कोई नहीं पूछने वाला है. So the health awareness is very important. So along with the education, हम लोग रोज तो पढ़ाते ही हैं बच्चे को, but during this tight schedule, तो tight schedule के बीच में we should take some time out to help promote the health awareness program among the students also, which is also as important as the education system. Improves academic achievements. If we are healthy, then we can achieve success. मैंने पहले बोला था कि अगर हम लोग हेल्दी हैं, हम लोग कुछ ऊंचा ड्रीम कर सकते हैं और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं अपने लाइफ में. सो हेल्थ इज इम्पोर्टेंट. सो इफ वी आर हेल्दी, देन वी कैन इम्प्रूव आवर एकेडमिक अचीवमेंट्स आल्सो. नेक्स्ट, प्रमोट्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. हम लोग क्या सोचते हैं कि इन ए स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज दे कम टू स्कूल. अलग अलग कम्युनिटी का, अलग अलग रिलीजन से, कास्ट से स्कूल में आते हैं, एंड वी आर ट्रीटिंग इट इक्वली. हम लोग क्या वो करते हैं, सारे बच्चे हम लोग के लिए इक्वल है, वी आर ट्रीटिंग इट, बट स्टिल देयर इज सम डिस्क्रिमिनेशन. बट उसमें भी कुछ डिस्क्रिमिनेशंस हैं. स्टिल इन इंडिया सम discrimination is here. For example, the students from the Muslim community, they wear some burqa, something like that. They come to school. I'm not going religion wise. मैं ये religion wise नहीं जा रहा हूँ कि मतलब वैसा पहन के आते हैं तो कुछ ऑब्जेक्शन है. But school has is uniform. जो हम लोग यूनिफॉर्म देते हैं बच्चे को, वो क्यों देते हैं? सिमिलैरिटी के लिए सर. दैट मींस ऑल आर इक्वल. इक्वालिटी होनी चाहिए. तो अभी उसमें रिसेंटली काफी वो बवाल हुआ था बुर्का कर चलते कर्नाटका. दैट मींस अभी वो मेरा ओपिनियन है, अभी उसमें एक्सपर्ट काफी कुछ वो व्यू करेंगे, वो अलग है. लेकिन ऐसे स्कूल में जब आप आ रहे हैं, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि इक्वालिटी हो, तो पर्टिकुलर सबके लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए. उसमें कोई मतलब रिलीजन को लेके हम लोग कोई रिलीजन प्रेयर कराने के लिए तो स्कूल में नहीं आए हैं, एजुकेशन के लिए आए हैं. इक्वालिटी होना चाहिए. तो मेरे हिसाब से इसका मतलब इक्वालिटी अगर होना है तो वहां पे भी इक्वालिटी होनी चाहिए. एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली. सो इन ए हेल्थी हेल्थ प्रोमोटिंग स्कूल इट इज मैंडेटरी दैट एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली. वहां पे इक्वली ट्रीट किया जाता है. देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन. And there is no any discrimination among the girls and boys also. Girls students and boys students में भी कोई discrimination नहीं. Improves students' interaction and promotes a sense of belongings within their schools. वहाँ पे बच्चों पे interaction किया जाता है. बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे भी बच्चों पे इंटरेस्ट बढ़ता है. जैसे I am taking the example of myself. Before 1 month we were having annual sports. I had included 7 to 8 students for making track and also for preparing for the sports. The student took active part in that. वो लोग काफी actively participate कर रहे थे. That means the students wants to take part in the school activities, but the school management doesn't provide that. The school management said only study. You are here only for the studies. सिर्फ पढ़ो पढ़ो, सुबह से लेके शाम घर में जाके सिर्फ पढ़ाई करते रहो. There is no any interaction classes. Most of the school there is no any interaction classes. Extracurricular activities, in the name of extracurricular activities, it is zero. Most of the schools, not only in Bihar or not only in Delhi, everywhere in India. It will be there in the diary. हर स्कूल का अपना डायरी होता है, उसमें काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं. कितने फॉलो होते हैं सर? 10%. It is not only the condition of a particular state. All over India, the same situation is going on. So it should be changed. Now, moving forward,
we have come across how to learn to form a healthy school. Now, ये तो सारी समस्याएं थी कि हेल्दी स्कूल में क्या होता है। अभी अगर हम लोग को हेल्दी स्कूल प्रमोट करना है, एस्टैब्लिश करना है, उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं उस कम्युनिटी, तो उसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, हेल्दी कंपैरिजन अमंग स्कूल्स। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल एस्टैब्लिश करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, we have to compare. A healthy comparison means not we are comparing two schools and it doesn't mean about the success ratio. हम लोग सक्सेस रेशियो पे नहीं जाएंगे कि वो स्कूल का इतने बच्चे बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट आते हैं इसके लिए, we are not comparing it. Healthy comparison means every school has its unique strength and weakness. अपने अपने स्कूल का स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है। कोई स्पोर्ट्स में आगे होते हैं, कोई एजुकेशन में आगे होते हैं, कोई हेल्थ सेक्टर में स्कूल आगे होता है, तो उसका हेल्दी कंपैरिजन हम लोग दो स्कूल या तीन स्कूल या पर्टिकुलर कम्युनिटी, वी विल कंपेयर द स्कूल्स। हम लोग को पहले स्कूल को कंपेयर कर लेना चाहिए, व्हाट आर इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। द फर्स्ट पॉइंट टू एस्टैब्लिश अ हेल्दी कम्युनिटी हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल इज द कंपैरिजन बिटवीन द स्कूल्स, व्हाट आर इज स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस। सेकंड, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। As I had mentioned it, every school has got its strength and weakness. वो अपने स्कूल में अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस है, अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। अभी उसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, एक स्कूल में उसका स्ट्रेंथ क्या है और उसका वीकनेसेस क्या है। एक बार जब उसको हम लोग को पता लग गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग बैठ के इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट फर्स्ट पॉइंट इज दैट वी हैव टू टेक आउट द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स, बोथ, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेवलप एन एक्शन प्लान। हम लोग को जब हम लोग का रिजल्ट आ गया, दैट मींस हम लोगों ने कहीं रिपोर्ट ले लिया, तो वी हैव टू मेक एन एक्शन प्लान। हम लोग को प्लान आउट करना पड़ेगा कि हम लोग उसको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कौन से एरिया में हम लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। वी शुड प्लान आउट द इंप्लीमेंटेशन प्लान। Then, after taking an action plan, we have to implement it. हम लोग उसको क्या करेंगे, implement करेंगे in our daily life. Next, evaluation and celebrate achievements. हम लोगों ने implement भी कर लिया। पहले हम लोगों ने क्या किया कि दो स्कूल या तीन स्कूल को कंपेयर किया, उन लोगों ने स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक्शन प्लान बनाया। अच्छा, अभी ये हम लोग के पास है, हम लोग इस तरीके से उसको डील करेंगे। आफ्टर दैट एक्शन प्लान हो जाने के बाद, हम लोग उसको इंप्लीमेंट करने के बाद, हम लोग को क्या करते हैं, जैसे हम लोग इस लैब में जाते हैं प्रैक्टिकल करते हैं, लास्ट में हम लोग को क्या मिलता है, कुछ रिजल्ट मिलेगा, या उसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, जज करेंगे क्या जो हम लोगों ने काम किया। तो अगर हम लोगों ने जो काम किया था वो अगर सक्सेस होता है, देन वी हैव टू सेलिब्रेट, तो हम लोग उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। नेक्स्ट, review and adjust the plan. That is more important. That is lagging behind. The last point, review and adjust the plan. That we are not doing. ये हम लोग नहीं करते। हम लोगों ने क्या किया, एक्शन प्लान सब कुछ किया, इंप्लीमेंट कर दिया, स्कूल स्टैब्लिश कर दिया, स्कूल रन करने लग गया, अचीवमेंट भी होने लग गया, बट आफ्टर सम टाइम वी फॉरगेट एवरीथिंग। हम लोग सारी चीज भूल जाते हैं। हमेशा द टाइम चेंजेस, हमेशा टाइम चेंज होता है, लेकिन हम लोग को नहीं सोचते। जैसे एक बार स्टार्ट हो गया, मतलब सक्सेस मिल गया, हम लोग ये मान लेते हैं कि हमेशा हम लोग को मिलने वाला है। रिव्यू नहीं, देयर इज नो एनी रिव्यू प्लान। हम लोग रिव्यू नहीं करते, एक बार हो गया मतलब वो 100% हो गया, हमेशा होगा, हम लोग ये मान के चलते हैं। बट देयर शुड बी रिव्यू एंड एडजस्टमेंट प्लान। हम लोग को उसको रिव्यू करते रहना पड़ेगा, स्टिल इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे एज ए टीचर आल्सो, if you want to teach smoothly in a school, you should be well prepared, because the student at present time, they are more advanced, they have got mobile in their hand, and a student who has got phone, the mobile phone in his hand, he knows everything, उसको सारा चीज पता है। so you should be well prepared. हम लोग को हमेशा prepared रहना पड़ेगा, because they can ask any questions, वो लोग कुछ भी क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं।
वो लोग नेट में जा सकते हैं, उसमें कुछ सर्च कर सकते हैं जो उनको डिफिकल्ट लगता है, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो उसको नेट से मिला हो, वो भी क्वेश्चन आपको क्लास में पूछ सकते हैं। वी शुड प्रिपेयर फॉर इट। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड टीचिंग इज नॉट सो इजी। टीचिंग करना इतना इजी नहीं है, इट इज ए टफ टास्क। सो वी शुड अपग्रेड आवरसेल्फ, हम लोगों को खुद को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। एंड this is also one of the topic discussed in health promoting schools. Now about the benefits, I have told about the students, टीचर के बारे, स्टूडेंट के बारे में मैंने बताया कि मतलब उनको कैसे कैसे उसको आप मोटिवेट कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम हेल्थ के बारे में वो कर सकते हैं। Not only physical, mental, some students come to school, they are facing depression. हम लोग को ये नहीं सोचना है कि जो बड़े होते हैं उनको सिर्फ डिप्रेशन होता है, छोटे बच्चे भी आजकल काफी स्ट्रेस में पड़ के डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। अब लोगों ने भी काफी बच्चे को इससे मिले भी होंगे शायद, तो बच्चे क्लास में डिस्टर्ब रहते हैं। सो द केसेस ऑफ डिप्रेशन और द स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, वो इंक्रीज हो रहा है। बच्चे आज के दिन में स्कूल नहीं आना चाहते, दे गेट इरिटेटेड इन द नेम ऑफ स्कूल, वो लोग इरिटेट हो रहे हैं। That means there is something boring. They are facing something difficult in the school. They are not showing any interest for coming toward the school. And not only talking about the junior students, but the senior also. They doesn't want to come to school. That means we are lacking something in the school. That means they are not showing any interest. मतलब उनमें interest नहीं रहेगा। Now they are studying by force. वो लोग forcefully पढ़ाई कर रहे हैं, वो दूसरों के लिए, फॉर द टीचर। अगर मैं याद करके नहीं जाऊंगा तो टीचर मुझे मारेगा या मारेंगे, उसके लिए वो लोग पढ़ के आए हैं, बट अपने लिए नहीं पढ़ते। दे आर स्टडीइंग फोर्सफुली फॉर सम अदर्स, फॉर पेरेंट्स। देख रहे हैं कि पेरेंट, एक बच्चा बैठा हुआ है, दूसरे घर में भी एक बच्चा बैठा है, एक घर का बच्चा पढ़ रहा है, तो उनके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, उसका बेटा पढ़ रहा है तुम क्यों नहीं पढ़ रहे, या उनका बेटा बेटी पढ़ रहे तुम क्यों नहीं पढ़ रहे। तो वो भी सोचेगा अच्छा मम्मी बोल रही तो पढ़ लेते, बट इंटेंशनली दे डजंट हैव द इंटेंशन टू स्टडी। लेकिन वो लोग इंटेंशन नहीं है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन वी आर मेकिंग समथिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम। सो देयर शुड बी सम इंटरेक्शन क्लासेस, और ऐसा कुछ होने चाहिए हम लोग एजुकेशन सिस्टम में ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले पढ़ाई में। फोर्सफुली हम लोग किसी को नहीं पढ़ा सकते, वी कांट फोर्स एनीवन to study. They will study, they will score. वो लोग पढ़ेंगे भी, स्कोर भी करेंगे, but after that there is no use. मतलब उनको ये लगेगा कि मजबूरी से पढ़ती है, मन से नहीं। तो इसमें एक जब मैं I was starting in class 8 or 9, one of my teacher, he was from Kerala. I used to say one thing. वो मुझे हम लोग सारे स्टूडेंट्स थे, वो लोग एक बात बोलते थे। As a students in a class 9, we are grown up. हम लोग class 9 में then we are about 14 years, mostly about 14 years students. Then he used to tell us one thing, that the students who are studying about class 8, then there should be the willingness in him that he will study for himself. वो खुद के लिए पढ़ाई करना चाहिए, वो फीलिंग्स उसमें आ जाने चाहिए। कब तक, जब वो क्लास 8 तक जब वो पहुंच जाता है, वो फीलिंग्स उनके मन में आ जाना चाहिए। अगर वो फीलिंग्स आता है देन द स्कूल इज सक्सेसफुल। अगर वो फीलिंग्स बच्चों में ला सकता है देन द स्कूल इज सक्सेसफुल, वही स्कूल सक्सेसफुल माना जाएगा। कब, जब क्लास 8 तक बच्चे पहुंच जाएंगे, तब अगर बच्चों के मन में ये आ जाए कि नहीं वो मेरे लिए खुद के लिए पढ़ाई करना है, वो स्कूल सक्सेसफुल माना जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज नॉट लाइक दैट। क्यों? If a student feels that he should study for himself, then as a teacher, as a parents, or any relatives, there can be no one that he should point out that you should study. हम लोग को बोलना नहीं पड़ेगा। जब उसको ये फील होगा कि वो खुद के लिए पढ़ाई करना है, तो आपको बोलने का जरूरत नहीं होगा कि तुम पढ़ो, वो खुद पढ़ने लग जाएगा। आप बोलेगा कि आज मत पढ़ो, वो लेकिन फिर भी अपना टाइम निकाल के वो पढ़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद के लिए पढ़ाई कर रहा है। He will have interest.
वो इंटरेस्ट का बात है। जैसे वाइल वाचिंग मूवी, एक बच्चे को जिसको अगर मूवी देखना पसंद है या किसी को फोन देखना पसंद है, हम लोग क्या करते हैं पेरेंट्स, अभी जो बच्चे को ज्यादा इंटरेस्ट हो गया फोन देखने में, पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन वो क्या करता है, कहीं से ना कहीं देख लेता है। क्यों देखता है? क्योंकि उसको इंटरेस्ट है उसमें। और वही चीज अगर पढ़ाई में आ जाता है तो आप बोलते कि ना पढ़ो, तो वो क्या करता है, वो पढ़ने लग जाता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट है उसमें। दैट इज द डिफरेंस। सेल्फ स्टडी एंड द स्टडी फॉर द अदर्स, इसमें ये डिफरेंस है। तो हम लोग को ये ट्राई करना चाहिए कि बच्चे को कि वो लोग अपने लिए पढ़े, सेल्फ स्टडी करें, अपने लिए पढ़े, then we will be successful in our life. And again, for the benefits of the school, there was one more interesting fact. It was given by the Education Minister of Delhi. Everyone knows who is the Education Minister of Delhi at present. अभी जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? मनोज सिसोदिया। Everybody knows him. सब लोग जानते हैं मनोज सिसोदिया के बारे में। So I see one of his conference. एक मैंने उनका कॉन्फ्रेंस देखा। It was very interesting about the education system in India. वो एजुकेशन से जुड़े थे। That means एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जो हम लोग का नेशनल कैपिटल है, उसके एजुकेशन मिनिस्टर है। That means he has got some qualities in him. उनमें कोई क्वालिटी होनी चाहिए तब जाके वो आज दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर है। तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बताया, I saw his conference and he was telling about the Indian education system. वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने क्या बताया, उनके जो छोटे बच्ची हैं, he was in UKG or 1 something like that. He was studying in Delhi. He doesn't mention the private or government school. उन्होंने ये मेंशन नहीं किया, लेकिन उनके बच्चे स्कूल में पढ़ती थी। जो छोटी बच्ची थी वो स्कूल में पढ़ती थी, दिल्ली में पढ़ती थी। तो उन्होंने वो क्या किया कि जैसे हम लोग बच्चे स्कूल आते हैं, जैसे छोटे यूकेजी में जो यूकेजी जो पढ़ाते हैं टीचर्स भी या बड़े लोग, उनको नोट होगा कि सबका एक पर्टिकुलर बुक होता है। हियर वी हैव गॉट वन पर्टिकुलर बुक, दैट इज इट वाज one page is there. It is given that 10 animals along with the name and the picture. Name के साथ picture दिया होता है। 10 flowers में flower ऊपर होता है, उसके नीचे नेम होता है। वो बुक होता है ना जो आप लोग जो जूनियर बच्चे को पढ़ाते हैं, दिखा के ये सनफ्लावर है तो उसके ऊपर सनफ्लावर लगाया होता है। पिक्चर बुक, पिक्चर डिक्शनरी बुक। हाँ पिक्चर डिक्शनरी। हाँ, तो उसमें वो बच्चे को वही पढ़ाया जा रहा था स्कूल में। तो इसमें एक पेज है, ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। उस समय जब उन्होंने बोला तब मैंने नोटिस किया, मुझे भी ये पता नहीं। तो वो जो पिक्चर बुक था ना, उसमें एक पेज ये भी होता है कि अलग अलग ये लोगों का, डॉक्टर है तो उसका वेल ड्रेस्ड है, जो भी इक्विपमेंट है वो लेके खड़ा है और नीचे लिखा है डॉक्टर है। जैसे आर्मी में यूनिफॉर्म के साथ वो आगे खड़ा है तो हम लोग क्या कराते हैं, सोल्जर। बच्चे को क्या दिखाते हैं? सोल्जर। दैट मींस हम लोग ये दिखाते हैं कि जो अपने यूनिफॉर्म में है, गन वगैरह लिया है, दैट मींस वो सोल्जर है। जैसे मिल्कमैन, अगर हम लोग मिल्कमैन पढ़ा रहे हैं तो जूनियर हम लोग क्या करते हैं, बुक में मिल्कमैन का फोटो बनाया हुआ है, नीचे मिल्कमैन लिखा है, तो हम लोग दिखाते हैं दिस इज द मिल्कमैन। रोज हम लोग यही पढ़ाते हैं। और एक होता है जेंटलमैन, एक वेल टाई वही लगा के आदमी को खड़ा किया जाता है बुक उसमें पिक्चर में, और उसके नीचे लिखा होता है जेंटलमैन। हम लोग रोज उसको पढ़ाते हैं जेंटलमैन, मतलब बच्चे क्या टीचर क्या पॉइंट करता है, जेंटलमैन। पिक्चर दिखाता है, वो जो टाई वगैरह लगा के बैठा है वो जेंटलमैन है, और बच्चे उसी को सीखते हैं, वही सिखाते हैं हम लोग। तो जब वो मनोज सिसोदिया को क्या किया कि कॉन्फ्रेंस था एक दिन, तो काफी लोग नीचे पीछे बैठे भी हुए थे, तो उनकी बेटी प्राइज लेने के लिए आगे आई हुई थी उसमें। तो जब प्राइज दे रहे थे ना, उन्होंने मतलब डेफिनेटली पूछ दिया सरप्राइजिंगली कि इनमें जितने लोग बैठे हैं कौन जेंटलमैन है। तो उसमें क्या किया, वो लड़की सबको देखी ध्यान से, इसमें काफी एजुकेटेड लोग थे, क्योंकि मतलब एजुकेशन मिनिस्टर किया होगा तो उसमें काफी एजुकेटेड लोग थे होंगे वहां पे। तो बस एक आदमी ने उसमें बाई चांस टाई पहने हुआ, वो लड़की ने डेफिनेटली उसी को पॉइंट कर दिया, ये जेंटलमैन।
उसमें मनुष्य सिसोदिया भी बैठे हुए थे, काफी बड़े लोग भी स्कॉलर्स बैठे हुए थे। वो लड़की ने क्या किया, बस उसी को पॉइंट की जिसने टाई पहनी हुई है। इसका मतलब जो टाई पहना है वही जेंटलमैन है, बाकी जेंटलमैन नहीं है। हम लोग को यही सिखा रहे हैं ना, जेंटलमैन मतलब वो जो टाई पहना है वो जेंटलमैन है, बाकी कोई जेंटलमैन नहीं है। उसका दिमाग में वही बैठ गया, उसमें भी उसने यही दिखाया कि वो जेंटलमैन है। इसका मतलब तो अगर वो कोई चोर होता है या कोई थीफ होता है, उसको भी अगर हम लोग टाई वगैरह पहना के बैठा दे तो वही सोचेंगे वो वही जेंटलमैन है। ये हम लोग का एजुकेशन सिस्टम, ये सब चेंज होना चाहिए, और वो चेंज वो करता है हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल, इसके बारे में बताया जाता है। सो इट इज एज इम्पोर्टेंट द अदर स्कूल एज कंपेयर टू द हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल। उसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, ये सारे डिफरेंसेस को हम लोग उसमें बताया जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर लेकिंग बिहाइंड, जो मैंने बोला था, जिनको हम लोगों ने सिखाया, जो नॉलेज दिया है। एंशिएंट टाइम में लोग हम लोग के पास आते थे पढ़ने के लिए, अभी हम लोग जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कुछ लैक कर रहे थे। यही सब चीज के लिए हम लोग पीछे जा रहे हैं। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड बट वी आर लेकिंग बैकवर्ड, हम लोग पीछे जा रहे हैं। दिस इज सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट वी आर लैकिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम, एंड आई होप द न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंप्लीमेंट दिस, कुछ चेंजेस लाए, रेजोल्यूशन लाए, ताकि कुछ चेंजेस हो। Also the benefit of the health promoting school, one again interesting fact about, we are talking about equality। हम लोग इक्वालिटी के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं कि सारे लोग इक्वल हैं, we should treat them equally, either it is religion based or caste based और मेल और फीमेल, सबको हम लोग इक्वली सोचना चाहिए। हम लोग वो बच्चों को सिखाते हैं, स्कूल में हम लोग यही सिखाते हैं, we should treat everyone equally and especially the females, male and females, या boys and girls are both are equal। We are celebrating, हम लोग क्या करते हैं, मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। जब मदर्स डे आता है काफी देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया में मम्मी का फोटो लगाया हुआ है या वाइफ का फोटो है, किसी का भी फोटो लगाया हुआ है। हम लोग ये करते हैं कि लेडीज फर्स्ट, हम लोग गवर्नमेंट क्या करता है, लेडीज को फर्स्ट वो प्रेफरेंस देना चाहिए। बट वी आर ओनली सेइंग, हम लोग सिर्फ बोलते हैं, इंप्लीमेंट नहीं होता। I was even shocked in the country, all over the world, only South Korea, Indonesia, Taiwan, and one South African nation. Only these 4 nations were there where the menstruation leave, the period leave, जो फीमेल को मंथली पीरियड लीव मिलना चाहिए, वहां पे मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। लेकिन वो तो मिलना चाहिए ना, बट इन इंडिया वो कोई रूल नहीं है, मतलब पीरियड लीव नहीं दिया जाता। तो इसका मतलब हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि जो वुमन है या जो लेडीज है वो फर्स्ट होने चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, हम लोग सब बोलते हैं, लेकिन उनका जो नीड्स है वो हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते। तो ये सारे जब उसमें जो रिपोर्ट मैंने बोला था कि जो इंडियन के जितने भी लोग हैं, दैट मींस 80 to 80% we are only first in giving advice। हम लोग सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, बट वो इंप्लीमेंट करने में हम लोग इतने सारे पीछे हैं। ये सारे चीज को देख के ही वो सर्वे किया हुआ है। दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, बट हम लोग करते हैं। हम लोग बच्चे को पढ़ाते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं हमारे डेली लाइफ में। बट जो हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल है वो करता है। तो अभी जितने भी स्कूल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स में इंक्लूड होना चाहिए, जिससे बच्चों का बेटरमेंट हो। और जब बच्चों का बेटरमेंट होगा, डेफिनेटली एक टाइम क्या होगा कि इंडिया का बेटरमेंट होगा। तो हम लोग को जो लॉस्ट ग्लोरी है ना, जो एंशिएंट टाइम में जो लोग आते थे हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए, अभी आने लगेंगे। नहीं तो यही होते रह जाएगा कि इंडिया पीछे चला जाएगा और वो लोग आगे चले जाएंगे। इसीलिए वो एक इंटरेस्टिंग कहावत भी है कि जो कॉक COC के क्या बोलते हैं सर उसको हिंदी में, मुर्गा, वो क्या करता है सुबह, क्या करता है, मतलब वो लोगों को जगाता है ना, सबको जगाता है। और सबसे ये मारे जाने वाला जानवर कौन सा है, उसी को ज्यादा खाया जाता है। इसका मतलब जो संसार को जगाता है उसी को मारा जाता है, वो सैक्रिफाइस करता है। बस ये होते रह गए, शुरू से ही होते आ रहा है।
तो सम चेंजेस शुड बी मेड, कुछ चेंजेस होने चाहिए ताकि जो हम लोग का कमिंग जनरेशन है वो आगे कुछ कर पाए। अदरवाइज ओनली टीचिंग, सिर्फ हम लोग अभी क्या करें, सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक सिर्फ पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, नो एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाओ। द स्टूडेंट गेट बोर्ड, द टीचर गेट बोर्ड, बट वी आर फोर्स्ड, हम लोग को सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर लेना है, कैसे भी वो सिलेबस कर लेना है, एग्जाम देना है, स्कोर कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। बस हम लोग इसी में रह गए हैं, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, कोई क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है। अभी मुझे देख रहा है कि जैसे आप लोगों ने बोर्ड का पेपर भी देखा होगा, अभी का जो बोर्ड का पेपर है 1-2 साल का, और पिछले आप लोग ये 2011-12 उस समय का जो पेपर है, आपको डिफरेंस दिखेगा। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग में दिया जाता है, इसका मतलब कुछ चेंजेस हो रहा है और होना जरूरी भी है। और सिर्फ हम लोग एग्जाम में क्रिटिकल थिंकिंग देंगे, क्लासरूम में होगा नहीं, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। पहले डिबेट्स करा सकते हैं स्कूल में, लेकिन वो हम लोग कराते नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। हम लोग को तो टाइम फ्रेम में बांध दिया गया कि इतना टाइम में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम लेना है, पास करना है। इंटरेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स में, ग्रुप डिस्कशंस होने चाहिए। जब तक डिस्कशन नहीं होगा ग्रुप में, तब नए आइडियाज कहां से आएंगे? आएंगे नहीं। ग्रुप डिस्कशंस होने चाहिए, लेकिन उसके लिए हम लोग को टाइम फ्रेम निकालना पड़ेगा, एंड इट शुड बी थिंक बाय द CBSE or the school management, not only school the CBSE, school management also can take out some particular time. They can increase the duration of the school for implementing such things. If they are teaching 6 period daily, one day teach for only 4 period, leave the 2 period for group discussion. For that it should not report to CBSE. उनको रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं कि हम लोग सिर्फ 1 दिन 4 पीरियड पढ़ाएंगे। Not coming to see the how you are running it. So the school can also make the change. School भी अपने change ला सकता है अपने। If they want, then school management can also change the environment. And for the teachers also, most of the school, while implementing anything, they should have some group discussion. कोई भी अगर ये कुछ इंप्लीमेंट करना है तो ग्रुप डिस्कशंस होने चाहिए among the teachers. The management should get views, the teachers views, what they are thinking. वो लोगों को क्या लगता है कि ऐसे करने से क्या होगा। I know that the final decision is taken by the school management. Final decision school management ही लेता है, but they can ask the views. ऐसा तो नहीं है कि जो स्कूल मैनेजमेंट ने सोच लिया कि वही 100% होना चाहिए, ऐसा तो नहीं। कोई टीचर भी ऐसा हो सकता है जो उनके अच्छा वो प्रेजेंट कर सकता है कि ऐसा अगर वो सोचता है, वो एक बार इंप्लीमेंट होता तो अच्छा रिजल्ट हो सकता है। क्रिएटिंग हेल्दी एनवायरनमेंट, हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे को कि स्कूल एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए, सारे चीज बताते हैं। तो उसके लिए पहले स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जब क्लास में जाते हैं, बच्चे हम लोग को देखते हैं, वी आर द रोल मॉडल फॉर देम। वो लोग हम लोग को देखते हैं कि हम लोग कैसे हैं, क्या है, कैसे पढ़ा है, वो लोग हम लोग देख के ग्रो होते हैं। तो जब ये सारे चीज नहीं होंगे, देन द टीचर who teaches in the school or in the classroom is not active in the class, वो एक्टिव नहीं हो पाता है। दैट मीन उनको ये लगता है कि वो फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मोस्टली लगता है, मुझे भी लगता है कि किसी भी चीज थोपा जा रहा है, मतलब बाय फोर्स उसको करने के लिए पड़ रहा है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर। टीचर का ड्यूटी है, आप आए हैं यहाँ पे पढ़ाना है, तो आपको जो बोलेगा वो आपको करना है, आप करते भी हैं, एवरीबॉडी डज दैट। बट कहीं ना कहीं वहां पे हम लोग को जो देना चाहिए था बच्चे को, वो नहीं दे पाए, वो लेग बिहाइंड हो जाता है। जिससे क्या होगा कि स्कूल मैनेजमेंट का भी ग्रोथ नहीं होगा। स्कूल मैनेजमेंट ग्रोथ नहीं होगा, इसका मतलब बच्चे का भी कोई प्रोग्रेस नहीं है, और बच्चे का अगर प्रोग्रेस नहीं है तो वो अच्छा आदमी बन नहीं सकते, तो अल्टीमेटली इंडिया भी सफर करेगा उसमें। तो ये छोटा छोटा चीज है जो हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए स्कूल इनिशिएटिव ले सकता है। और ये सारी चीज जो हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स हैं, तो अभी नियर अबाउट 37 कंट्रीज में ऑल ओवर वर्ल्ड
इट इज फंक्शनिंग एंड इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री। वो इंडिया भी एक कंट्री है जहाँ पे हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल चलता है, इसको हम लोग शॉर्ट में HPS बोलते हैं। ये सारे स्कूल्स में ये सारे चीज फॉलो होते हैं, उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका मतलब जो हम लोग के बाकी स्कूल्स हैं और जो HPS है, डेफिनेटली HPS इज क्वाइट बेटर देन आवर एजुकेशन सिस्टम। जो हम लोग अभी का जो प्रेजेंट हम लोग स्कूल चला रहे हैं उससे काफी अच्छा है। वहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस होता है, क्विज होगा बच्चे में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होगा, कल्चरल प्रोग्राम होगा, जिससे बच्चों को कुछ नया सीखने को मिले। कुछ नया साइंस एग्जीबिशन होगा, बच्चे कुछ अपना क्रिएटिव बनाएंगे, बुक फेयर ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। काफी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग का पता भी है कि हम लोग करा सकते हैं, बट बाय द बाउंडेशन ऑफ द टाइम, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। बांध दिया गया कि आपको इतना टाइम पे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, ये करना है, आपको एग्जाम लेना है, आपको फ्री नहीं डाला होगा ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ करा सकें। और हम लोग लास्ट में क्या सोचते हैं कि बच्चे इनडिसिप्लिन हो गए हैं, ये हम लोग का कंप्लेन होता है। लेकिन उसके लिए हम लोग कितना एफर्ट डाल रहे हैं नहीं, कोई डिस्कशन नहीं है। बस हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि बच्चे इनडिसिप्लिन हो गए हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज नहीं है, लेकिन उसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं है सर। जो स्कूल प्राइवेट स्कूल्स में एक दो स्कूल मैंने देखा जो मिशनरी स्कूल्स हैं, आई हैव सीन इन मिशनरी स्कूल, आई एम आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ मिशनरी स्कूल। वन सब्जेक्ट वाज टॉट मॉरल साइंस। मॉरल साइंस एक बुक पढ़ाया जाता था और उसका ना एग्जाम होता था, कुछ नहीं होता है सर, नथिंग। इट इज ओनली रिटन अबाउट द गॉड, भगवान के बारे में बताया जाता है, हाउ टू रेस्पेक्ट पेरेंट्स उसके बारे में बताया जाता है, हाउ टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, इट इज टॉट इन द बुक। इट वाज नॉट रिलेटेड टू मार्किंग, वो मार्किंग से मार्क्स के लिए कुछ नहीं, उसका एग्जाम भी नहीं होता, लेकिन हम लोग पढ़ते थे सर उसको। तो उससे जब हम लोग पढ़ते थे, माय पर्सनल फीलिंग्स, तो जब उसको पढ़ाने के लिए एक सिस्टर आते थे वहाँ पे, जब मिशनरी स्कूल्स होते ब्रदर एंड सिस्टर्स होते, वो सिस्टर्स आ रही पढ़ाने, वी फेल वेरी इंटरेस्टेड। हम लोग बाकी सब्जेक्ट पढ़े ना पढ़े, जब वो सिस्टर आएंगी, एक भी फ्राइडे को होता था, काफी इंटरेस्ट लेके बैठ जाते थे। 50 सिस्टर आएंगी, मॉरल साइंस पढ़ेंगे एंड सी विल गिव द मॉरल वैल्यू, और वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे, हम लोग काफी इंटरेस्ट से सुनते थे। उससे भी चेंजेस आते थे सर। एल्डर्स को कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, जब गॉड के बारे में बताए, डिसिप्लिन के बारे में बताए। मैं ये नहीं बोलता कि 100% बच्चे फॉलो ही करेंगे, लेकिन अगर हम लोग रोज करेंगे तो नियर अबाउट 70 to 80% तो फॉलो कर ही लेंगे। ये भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग स्कूल में, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि वो इंप्लीमेंट, मतलब स्कूल मैनेजमेंट चाहता नहीं, बस ये वो करेगा कि बच्चे इंडिसिप्लिन हो गए, ये हम लोग सोचते हैं। लेकिन बच्चे क्यों इंडिसिप्लिन हो रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग बिहाइंड द रीजन, उसका रीजन हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, व्हाई इट इज लाइक दैट। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द रिजल्ट, हम लोग सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते रह गए, everything is lagging behind. Some of the parents, they feel that when somebody comes to their house, they are not wishing them good morning or good night, or they are not touching the feet of the elders also. Parents बोलते हैं कि हमारे बच्चे जब गेस्ट आते हैं या मेहमान आते हैं, उनको कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, या जो भी रिस्पेक्ट करना चाहिए वो नहीं कर पाते, टीचर को नहीं करते हैं। हाँ, that is the condition, ये कंडीशन हो गई है। That means we are lacking the moral value, हम लोग moral value बच्चे को दे नहीं पाते हैं। सिर्फ हम लोग ये बोलते हैं कि वो बच्चे को तो घर में सीख के आना चाहिए। अगर बच्चे सारा घर में सीख के आता तो फिर स्कूल क्यों आता सर? कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल का भी बनता है कि बच्चे को कुछ अच्छा बनाए, मतलब उसका रिजल्ट अच्छा आ गया तो उसमें आप नाम दे देंगे कि हम लोग स्कूल का एक बच्चा है, नाम आ गया, लेकिन जो खराब आया उसके बोलेंगे नहीं ये हम लोग का स्कूल का बच्चा नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। So all these topics are being discussed in the health promoting school. So about the today's topic, my topic was health promoting school. All these topics are being discussed in the health promoting school. वो लोग follow करते हैं। So I want the same to be followed, or the some part to be followed in all the other schools also, for the betterment of the school.
for the betterment of the children, in the name of the school or the nation. It should be taught in the other school also. Okay. Thank you and have a nice day.